Yes. How are you, बच्चों? How are you all? Good, ma'am. Good, good. Anyway, I should not ask one question, but still I will ask. How was your examinations? So there was no examination, and have you gone through the marks of internal? Yes, ma'am. Okay, Yes, okay. ma'am. So are you satisfied with the marks? Yes, ma'am. Very Yes, nice. ma'am. So you feel like this semester, every semester should be like that in future? No, ma'am. No, yes, this is the positive thing. It should not be like that. This is very hard situation, very difficult situation for all when we people are not able to meet, and you people are not able to come out from the house for even. I think for necessary things you might be coming outside the classes, outside the home, and I think all are safe at home. Yes, Yes, ma'am. ma'am. I wish it should be like that. In your family, everything is okay. Yes, ma'am. Any is because the number of the cases are increasing for COVID-19. So everybody is safe. Everybody in family is safe. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All fine. Yes. Oh, good, good, good. Say, I am seeing here 14 participants. मतलब 14 students are there. Uh, uh, let's see how many are coming. Okay. Prakshi, right? Prakshi, I will give you the name of the students, right? Then you can make the group of healthcare law. Okay. Yes, ma'am. It's because I will take combined classes for BA and BBA both. So because every time it's not possible, you may check the mail and all. So we'll share the information by WhatsApp group, right? So we'll do that. So I will just share the name of the students for BLLB and BBLLB. Both you just make the group, and I will share the contact number also. I will share a list where your contact number is written there, right? Just tell me whether it is a right or not. ठीक है प्राक्षी आप पूछ लीजिएगा बच्चों से Yes, ma'am. ठीक है before entering their name. So I will just share for to make the group WhatsApp group या Telegram group. Which group you want to make it? WhatsApp group, ma'am. WhatsApp group. Okay, okay, good, good. ठीक है. So let's start. We have 15 students here, and let's start. Why you have taken healthcare law? कोई बताएगा? It should be means what is a participatory class. It's not कि I will say something and you will listen only. You have to participate. Relevant thing. ठीक है, not extra thing. So just tell me why you have taken healthcare law as a optional paper. Anyone? Because, ma'am, this subject is very important in today's time. Because we should know that what are doctors doing, what are our rights, and what are their duties, and what are their rights. Right, right. ठीक है. And others? Yes, Raghav Mishra. Raghav Mishra. Yes, ma'am. Why you have opted this paper, beta? Ma'am, because I want to study about the negligence about the hospital on the part of the doctor, and after the law we can apply in practical life in filing Yes. PILs. ठीक है, good, good. And or Anjali Yadav. Yes, ma'am. Tell me why you have opted this paper. मैम ये इसलिए क्योंकि
पता चल सके डॉक्टर्स का कि क्या नेग्लिजेंस और इन सब का। नेग्लिजेंस के बारे में। Yes, अच्छा, ma'am. ओके। एनी अदर रीजन, एनीवन? मैम बेसिकली हमें हेल्थ केयर पॉलिसीज पता चले और उनमें हम क्या आगे इम्प्रूवमेंट फर्दर ला सकते हैं, और क्या एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए मेडिकल एड में, मेडिकल लॉज में, और बीइंग एन इंडियन सिटीजन व्हाट आर आवर्स लाइक राइट्स व्हिच वी कैन गेट फ्रॉम द मेडिकल हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स. सो आई गेस these are some objectives of medical healthcare law. ठीक है। एनी अदर? आदित्य सिंह? Yes, ma'am. हाँ, just tell me why you have opted this paper. Ma'am, so that we can figure out any malified intention of the doctors or like any negligence of the hospitals and all. Okay. And any other? Abhay? Abhay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. Can you tell me why you have opted this paper? मैम जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री ही एक काफी वाइड स्कोप है आगे, और हेल्थ केयर इंडस्ट्री कंपनीज में और बिजनेस में काफी बूम कर सकती है, तो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट मैम उससे रिलेटेड। Okay. आंचल अग्रवाल, आप बताओ बेटा। Ma'am, I always want to explore in this field as well, where we can go through the healthcare administration and all the provisions and rules and regulations regarding this. So it's gonna be a very impressive area which I want to explore. That's the Okay. reason I opted for this Okay. subject. And Manya Jetli? Manya? Manya, can you hear me? मैम उसका नेटवर्क इशू है, उसका माइक काम नहीं कर रहा. ओके. एंड प्रियांशी? प्रियांशी? यस मैम आई ऑप्ट दिस सब्जेक्ट बिकॉज मैम मुझे पता मतलब मैम आपसे पढ़ना था क्योंकि। ओके. ओके. एंड सुगंधा? मैम एक्चुअली मैंने रिसर्च किया था मैम, इसमें जॉब इंक्रीज हो रहा है इस फील्ड में, इसीलिए. So almost any other student want to share something regarding this paper? Any other? Okay. Let's see, so many things have come up with this. किसी को मुझसे पढ़ना था, चलो अच्छा है, मुझे पता चला कि मेरे भी कितने बड़े फैन हैं यहाँ पे लोग. एंड सेकेंड थिंग जो आप लोगों ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया कि you want to study about the negligence of doctors and hospitals. Raghav Mishra very rightly told that there is negligence on the part of doctor as well as hospitals. So he want to study what kind of negligence they make. What kind of negligence they may show in their exercising their duty, in their discharging their duty. And second thing, you want to explore your career. Very rightly you said, this is a emerging area where we can say it's not only legal thing, it's a techno-legal things. अभी तक we have studies that socio-legal issues, economic legal issues, but this you can say is a techno-legal issues. Technicalities बहुत ज़्यादा है, and you cannot say the doctor is wrong because you are layman person, so you can't say. So there is expert advice, there is expert opinion, and it is very difficult to prove that doctor is negligence or hospital is negligence unless and until there is a prima facie case. So ये चीजें बहुत ज़्यादा है. And second thing, criminal liability की बात कर रहे हैं, so doctors may have criminal liability
Doctor may have civil liability, and now civil liability in consumer law as well for medical negligence. So that, of course, it's a emerging issue for the practitioner to explore their expertise in this particular area. Very rightly says. And you just told that you want to study what are your rights regarding healthcare, and what are your duties also, that we don't know whether we have duties or not. Right की तो बात है, we don't know we have duties regarding healthcare or not. We will see when we will study this thing. And next आप लोगों ने बोला कि some healthcare policies you want to know, you want to get aware about healthcare policies. So it means you have covered, in fact, all the syllabus by saying that why you have opted. I asked from you guys because I wanted to know कि आप लोगों ने किसी को देखकर ही कि उसने लिया है तो इसलिए हम भी ले लें, ये सोच के लिया है, या आप रियली यू वांटेड टू स्टडी दिस पेपर. तो जब तक आपका इंटरेस्ट अगर नहीं होगा तो पढ़ना तो है ही, वो बात अलग हो जाती है. लेकिन अगर इफ यू हैव इंटरेस्ट then it will become more fun for you, and then we'll have make command over the subject. So this healthcare law, it's a really very interesting paper. और आप इससे इन सिलेबस तो आप लोगों को मजबूरी में पढ़ना है कि इतना इतना पढ़ना है, अदरवाइज एरिया इज नॉट लिमिटेड. एरिया रिगार्डिंग हेल्थ केयर लॉ इज नॉट लिमिटेड. ये बहुत मतलब इतना, एंड एवरी डे इट इज एक्सपेंडिंग. तो बहुत जो भी लोग इसमें अगर इफ दे मेक इट देयर एज ए प्रोफेशन practicing in this particular legal field, it will be good for them. And expertise अच्छा है, lawyers थोड़ा सा कम मिलते हैं इस पर, इस एरिया में. And now come to the point. The name of this paper is seminar paper. Anybody is aware about what is the meaning of seminar paper? It's a seminar paper. Why it is called seminar paper? किसी को कुछ आइडिया है? अगर कोई बोलना नहीं चाहता है तो they can write in chat box. What is the meaning of seminar paper? Anyone? मैम चैट बॉक्स डिसेबल है. Disabled है? Yes, sir. Okay, just wait. चलो वैसे ही बता दो, मैंने सेटिंग कर रखी होगी शायद. Anyone can say what is the meaning of seminar paper? Ma'am, option to choose subject of a choice. हाँ, now you chat देखना. हाँ बेटा, क्या बोला आपने राघव? Ma'am, option of choosing paper of a choice. Okay, of your choice. ठीक है, एक चीज ये हो गया. नेक्स्ट, chat box enable है. Now you can chat with anyone. I think no one is aware about. I think अगर कोई जवाब नहीं आ रहा है तो no one is having any idea why it is called seminar paper. See, आप लोगों में से कितने लोगों ने कॉन्फ्रेंस सेमिनार में पार्टिसिपेट किया है? किसी ने पार्टिसिपेट किया कॉन्फ्रेंस वगैरह में? Yes, ma'am. यस. तो वहाँ क्या होता है सेमिनार कॉन्फ्रेंस में, क्या होता है? We discuss about the specific topic. Discuss about this specific topic. Very right. So in conference, whosoever is participate
they presented their paper, right? Conference. In conference, number of the people are presented their papers. Yes. Yamuna is writing, we used to present our research paper. Very right. In the conference, it is done. But what happened in seminar? It is similar to that. In seminar paper also, people present the papers. So almost it is same. The research papers are presented by persons whosoever is participating in conference and seminar. Since it is a seminar paper, you have to present a paper. Is it clear? Yes, ma'am. You have to present paper. Research paper, academician, lawyer present their paper in seminar. Okay, so like that, since it is a seminar paper, it's not a core paper. राघव ने बोला कि ठीक है, इससे people can opt the paper according to their choice. ठीक है, it means you have some interest, you want to, when you have some interest extra, then you have to make research on the topics related to particular seminar, and then you have to present the paper. So we will go for एक आंचल अग्रवाल लिख रही है एनालिसिस ऑफ द पर्टिकुलर एरिया. वेरी राइटली शी सेड कि तो अब इन पर्टिकुलर एरिया में देयर विल बी सेवरल टॉपिक, देयर विल बी सब टॉपिक्स. So there you have to make the research and accordingly you have to present the paper. So seminar paper में you just see what are the content in your syllabus, right? What are the content in your syllabus, and accordingly you have to opt one topic of your choice and make research, then you have to present the paper. Is it clear to all? I think it must be clear to all. तो अब क्योंकि आज जो है हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास में फर्स्ट यू मस्ट नो what this seminar paper says. This seminar paper says that the meaning of seminar paper means all you have opted this paper, then you have to show your expertise in this paper by presenting a paper of your choice. ठीक है, आपके सिलेबस में अगर कोई टॉपिक कवर होता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कवर होता है तो भी आप उससे रिलेटेड टॉपिक यू कैन टेक इट. ये इसमें क्या होता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में आप अपने इंटरेस्ट के पेपर को प्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, तो वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, जो आप लोगों की डाउट कि किसी ने ये सब चीज़ों को डिस्कस किया होगा क्लास के अंदर, क्योंकि जब तक कि आप चीज़ को ABCD या उसका बैकग्राउंड नहीं अगर समझेंगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं होती है. ये कुछ समय के बाद आपको हो जाएगी, ठीक है, कुछ समय के बाद हो जाएगी, लेकिन आई वांट कि क्लैरिटी एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ही होनी चाहिए हर चीज़ की. तो लेट अस टेक कि आपका जो ये पेपर है, ये पेपर पढ़ने के बाद, सेमिनार पेपर पढ़ने के बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं. तो मेरे हिसाब से जब आप पढ़ोगे तो जब when you study about this what is say this unit 1, ठीक है, unit 1 पढ़ेंगे तो then after reading this unit 1 you will get to know, you will understand the concept of medical jurisprudence. नाम सुना होगा ना मेडिकल jurisprudence? अगर नहीं सुना तो after reading this paper, after studying this first unit, you will come to know what is medical jurisprudence and what it has impact in the legal framework. क्योंकि कुछ there are several issues where we don't have any law, we don't have any case law, we don't have any rules, regulation, etc. So we will understand what is the concept of medical jurisprudence and its effect on legal framework. Then उसके बाद फिर आप then you will understand you will get the opportunity to relate this healthcare with international issues, national issues, and the current issues as well. And what should be legal protection, what are legal protection, and what should be the legal protection. Is there any base law?
Is there any subordinate law? Then we will understand, and the student will have the opportunity to interact the issues with the society. ठीक है, अब अगर हम बात करें, इतनी हमने बड़ी बड़ी बातें कर दी, कितने लोग इसको ध्यान से सुन रहे होंगे, आई डोंट नो, बट आई वांट टू से दिस what unit 1 says and what after studying unit 1 what you will understand. And see this syllabus, if we say in this syllabus, first unit says that healthcare issues at international level and national level. First topic is of your syllabus is healthcare issues at national level and international level. After studying this healthcare issues, then we will come to know what is the role of United Nations, what is the role of several agencies of United Nations, what is the role of WHO. अभी COVID-19 के समय, कोरोना के समय WHO की रोज न्यूज आती है कि दिस प्रोटेक्शन यू हैव टू टेक, दिस टाइप ऑफ द मास्क यू हैव टू टेक, एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स आ गई. अभी आप अगर देखें कि रशिया ने बोला कि हमने वैक्सीन बना ली है, लेकिन WHO इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. तो there are some issues at national level, there are some issues at international level. Then we will correlate all these things, and then we will correlate with the society. And then we will, yes beta. मैम बल्कि वैसे तो यूएन का परमानेंट मेंबर है, तो WHO तो उसकी बात मानने के लिए बाउंड है ना, कि वैक्सीन बना ली तो बाउंड हुआ ना बात मानने के लिए जब परमानेंट मेंबर है. नहीं देखो बेटा, ऐसा है ना कि परमानेंट मेंबर है फॉर अदर पर्पस, बट फॉर दिस थिंग ऐसे नहीं होगा कि भाई हेल्थ केयर, वर्ल्ड के हेल्थ केयर को देखने की जिम्मेदारी किसकी है? एक एजेंसी को है. एजेंसी यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, वही तो काम करेगी. आप इसको ऐसे सोचो, यूनिवर्सिटी में कई सेल होती है, एक एडमिशन सेल अलग होती है, एकेडमिक सेल अलग होती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, रजिस्ट्रार का ऑफिस अलग होता है, वीसी का ऑफिस अलग होता है, सबके अपने अपने जो एरिया फिक्स हैं, वर्क एरिया है जो उनका प्रोफाइल फिक्स है. तो WHO इज द एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन. उसको उन्होंने पावर दी है कि भी आप जो गाइडलाइन दोगे, आप जो दोगे उसके हिसाब से होगा. तो इट डजंट मीन कि रशिया इज ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन तो उसकी हर बात मानी जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होता. तो दैट्स व्हाई अब आप जो है, आपने अगर एक बात की है कि भाई परमानेंट मेंबर है तो उसकी बात मानी चाहिए, दिस इज ए चैलेंज. आप इस पे स्टडी कर सकते हो, आप इस पे स्टडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, और देन कैन प्रेजेंट योर पॉइंट्स ऑन दिस पॉइंट. कुछ फिक्स नहीं है. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आफ्टर स्टडी this first unit you will come to know what are the issues at national level, what are the issues at international level, how you can correlate with the society, and then you'll come to know about what is medical jurisprudence, and we'll come to know what is the impact of this medical jurisprudence on legal on other societies. So this thing you will come to know, and in first unit you will also come to know what our constitution says about healthcare. Do we have any provision, constitution provision regarding healthcare? Any idea you have beta? आप लोगों को any idea you have? Yes, मैम आर्टिकल 21. Article 51. 21. Okay, but this is talking about life to liberty and protection की बात करें. No one shall be deprived from life and liberty except due procedure of law, where it is written healthcare. मैम पर इंक्लूड होता है मैम कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है उसमें इंक्लूड, जैसे एमसी मेहता है एनवायरनमेंट क्लीन की बात जो करता है, उसमें भी हेल्थ की बात आ जाती है, एयर पोल्यूशन इन सब की. नहीं, वो तो आपको ये बात बोला है कि भाई एनवायरनमेंट अच्छा ठीक से होना चाहिए बिकॉज इट इज गुड फॉर द हेल्थ, बट व्हाट प्रोविजन वी हैव? भाई सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आ जाता है कहीं पर, तो डजंट मीन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग अबाउट दिस. Okay, but we will see what constitution provision we have regarding healthcare, and then अभी आपने जो article 21 की बात की, तो then we will also study whether right to health is a fundamental right or not. Of course,
There are certain judgment where it is mentioned right to health is a fundamental right, but how it come? So then we have to, इसको आप लोगों को ना अपना स्टडी करने का मीन्स विजन है, दैट यू हैव टू मेक इट चेंज. आप एज इट इज नहीं कि कुछ लिख दिया है तो आप उसको एज इट इज फॉलो करोगे. नाउ यू आर इन 9th सेमेस्टर, यू हैव टू एक्सपेंड योर विजन विद द रिसर्च एरिया एंड विद योर व्यूज कि भाई ये जो चीजें हुई हैं वो ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ. एंड देन वी विल स्टडी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू रहता है पेशेंट्स राइट को लेकर कि पेशेंट इज हैविंग ए राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी एंड ऑल. तो डॉक्टर क्या करते हैं भाई, वो वेदर दे रेस्पेक्ट दिस राइट ऑफ द पेशेंट और नॉट. डू वी हैव एनी प्रोविजन रिगार्डिंग दिस? So that will also study. And then at last we will study in first unit that patient's right to access the medical record. We कई there are hospitals उसमें वो क्या करते हैं कि वो they make the patient का जो medical history and अपनी फाइल बनाते, they keep with them, they do not give it to patients. If patient asks it, even then they do not provide it. Some hospitals provide it, but some refuse to give it. So do we have any law whether patients can exercise this right? If doctor refuse to give, how a patient can exercise can get this thing? So this we will study in unit first. तो अब आप सोच लो, जो मैंने आपको पहले बताया है, you will come to know medical jurisprudence. Medical jurisprudence in what way? Under the constitution, right, and under the international area also, and its impact on the society. और फिर मैंने आपको बताया national and international issue, and you will correlate all these things with the society. So after reading first unit, the student will understand what is medical jurisprudence and will understand what are the issues at national and international arena and correlate with the society. Is it clear to all? Yes, ma'am. Okay. बोर तो नहीं हो रहे? No, ma'am, no. Okay, good. Okay, and now the second unit की अगर हम बात करें तो second unit पढ़ने के बाद students will understand professional obligations of doctors under various acts dealing with the liability of medical industry, protection of individuals. And the students will also have the ability to critically analyze and to write and read electronically through modern research techniques and tools. Meaning thereby, आप लोगों ने मैं ऐसे अभी बोला था ना, you want to study what medical negligence on the part of doctors and hospitals. आप कैसे बता सकते हो? तो आपको certain इंस्टीट्यूट पढ़ने पड़ेंगे, सर्टन एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. कि मान लीजिए एक होम्योपैथिक डॉक्टर प्रैक्टिसिंग इन एलोपैथी, कैन ही डू? ही कैन नॉट. एक आयुर्वेदिक डॉक्टर इज डूइंग प्रैक्टिसिंग इन होम्योपैथी, कैन ही डू? ही कैन नॉट. तो इसके लिए यू हैव टू स्टडी सर्टन एक्ट. फॉर एग्जाम्पल इंडियन मेडिसिन एक्ट. इंडियन मेडिसिन एक्ट बताता है कि भी who can registered as a doctor. There is a homeopathic act. This act says who can registered as a homeopathic doctor. ऐसी डेंटिस्ट एक्ट है तो उसमें who can do practice in dental. तो क्या डेंटल जो है फिजिशियन का काम कर सकता है? क्या एक फिजिशियन सर्जन का काम कर सकता है? तो देयर इज प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन. मैंने क्या बताया था? आफ्टर स्टडिंग सेकेंड यूनिट, स्टूडेंट विल कम टू नो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस ऑफ द डॉक्टर ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल एज वेल अंडर आफ्टर स्टडिंग सर्टेन एक्ट्स. तो सारी ड्यूटीज फिक्स करी गई हैं, कौन डॉक्टर कैसे क्या. और तो बहुत सारे एक्ट्स हैं, लेकिन हम कुछ एक्ट पढ़ेंगे. सारे एक्ट नहीं पढ़ सकते, वो सारे कवर भी नहीं हो सकते, बट सर्टेन एक्ट्स पढ़ेंगे. जैसे कि एक वो है रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स. रिमूवल ऑफ ऑर्गन कब हो सकता है, किसका हो सकता है,
कैसे हो सकता है, what is the procedure, who can donate their organ, how it can be removed, who is having the responsibility, which doctor, which hospital. तो obligation, अगर कोई गड़बड़ करता, this is also a medical negligence. Yes, तो that thing है. इसके अलावा there is a medical ethic code, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों है. तो that is also a professional obligation on the part of doctors. So after study this unit, you will come to know what doctors are having statutory and ethical duties towards patient. If they do not fulfill, then you can, as a student, after studying this, you can critically analyze कि ये तो गड़बड़ है. क्यों, वो कैसे एनालाइज करोगे? आफ्टर स्टडी केस लॉज, कि क्या गड़बड़ है, कहाँ कैसे गड़बड़ है, तो यू कैन एनालाइज. So this will be the second unit, and then we will study. Is it clear, second unit? Hello. Yes ma'am. हाँ ठीक है. तो सेकेंड यूनिट पे हम लोग कई एक्ट पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको 3 एक्ट अभी बता दिए. डेंटिस्ट एक्ट, होम्योपैथिक एक्ट, इंडियन मेडिसिन एक्ट, इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक मेडिकल एथिक्स एंड नेशनल कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स. And will we study about transplantation of human organs and tissues act, and we will study about drugs and cosmetic act, and we will study one more act, that is PCP and DT act, pre-conception prenatal diagnostic techniques act. तो ये सारे एक्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें, and we'll come to know what doctors are having duties under this. ठीक है. जैसे आप लोग एक बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो निकल जाती, हो सकता है ध्यान नहीं दे, लेकिन जब आप हेल्थ केयर लॉ पढ़ रहे हैं तो यू मस्ट गिव योर फोकस ऑन दिस. जैसे कि अभी रिसेंटली क्या 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लाल किले से घोषणा की कि हम सीट्स बढ़ाएंगे डॉक्टर्स की, जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें हम सीट्स बढ़ाएंगे. तो वो सीट बढ़ाने का मतलब है देयर विल बी मोर एडमिशन इन मेडिकल. तो ये जो सीट बढ़ाएंगे वो कैसे बढ़ा सकते हैं? देयर इज लॉ, अंडर विच लॉ इट कैन बी, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर. तो और अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है तो इसका मतलब वायलेशन होगा लॉ का, तो जो ऑब्लिगेशंस है वो चीजें कंप्लीट नहीं होंगी. तो दैट यू विल कम टू नो अबाउट स्टडीइंग दिस सेकेंड यूनिट. नाउ इन थर्ड यूनिट वी विल स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मेडिकल नेग्लिजेंस. तो आप लोगों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है, जो सबने बोला है, यू वांट टू स्टडी व्हाट इज मेडिकल नेग्लिजेंस, एंड यू विल कम टू नो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स of medical negligence under different law. For example, under law of torts, under criminal law, under Consumer Protection Act, and how this negligence has become medical negligence. And you will also learn different tests to determine medical negligence, and you will also learn different approaches regarding medical negligence under different law. So after study, 3 things you will come to know. First, you will understand what is medical negligence and its impact. Second, you will come to know what are the different tests to determine medical negligence, and you will also understand what are the different approaches regarding medical negligence under different laws. तो आपको अगर आप सिलेबस देखेंगे तो देयर आर ओनली 3 टॉपिक अंडर दिस यूनिट. तो पहला टॉपिक है इंग्रेडिएंट ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस. सेकेंड टॉपिक है आपका व्हाट इज से दिस एरर ऑफ जजमेंट एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस. एरर ऑफ जजमेंट एंड ग्रॉस नेग्लिजेंस. देन आपका एक टॉपिक है व्हाट इज से दिस रॉन्ग डायग्नोसिस एंड नेग्लिजेंट डायग्नोसिस. अगर आप देखेंगे कि ये तो बहुत केसेस होते हैं कि डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर को आपने स्टोरी बताई, अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताई, पर डॉक्टर को डायग्नोज गलत किया और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कर दिया. पता चला कि डॉक्टर जो है
आपको बीमारी है उसकी क्या बोल टीबी की, और डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दिया वो कैंसर का। मान लीजिए आपको कैंसर है लेकिन डॉक्टर ने डायग्नोज कुछ और किया। अगर आप डॉक्टर के पास गए, आपके मान लीजिए चेस्ट के पास थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो ये गैस्ट्रिक भी हो सकता है और ये अटैक भी हो सकता है। लेकिन डॉक्टर ने अगर इसको रॉन्गली डायग्नोज किया, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया, वेदर ही विल बी लायबल और नॉट, एरर ऑफ जजमेंट कि आपने जो मेडिकल हिस्ट्री। अब एरर ऑफ जजमेंट ये भी होता है कि रॉन्ग डायग्नोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है। रॉन्ग डायग्नोसिस, एरर ऑफ जजमेंट, इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन कब ये ग्रॉस नेग्लिजेंस बन जाए, क्या एरर ऑफ जजमेंट के लिए डॉक्टर लायबल होगा या नहीं, तो दैट यू विल स्टडी अंडर यूनिट 3. And now unit 4. Unit 4, student will get a opportunity to learn remedies in cases of medical negligence in different laws. मतलब आपने ये तो पढ़ लिया कि मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है, आपने ये पढ़ लिया इश्यूज क्या हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, पेशेंट्स के राइट क्या हैं, डॉक्टर्स की लायबिलिटी क्या है, मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है, एरर ऑफ जजमेंट क्या है, रॉन्ग डायग्नोसिस क्या होता है, मेडिकल नेग्लिजेंस और मेडिकल मैल प्रैक्टिस में डिफरेंस क्या है। ये सब पढ़ने के बाद अब क्या आता है, रेमेडीज। डू वी हैव एनी रेमेडीज फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस? If we have, under which law? So that we will study remedies for medical negligence under law of torts, remedies for medical negligence under law of crime, remedies for medical negligence under law of consumer. 3 things we will study. After studying this thing, student will have opportunity to learn remedies in cases of medical negligence in different field of law. Students will acquire the ability to start practice in medical legal cases, and they can solve the problems, and they will also understand the ethics to follow in medical legal cases. Am I right? Am I right? Yes. है ना? तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि what our syllabus says, syllabus of medical negligence says, syllabus of healthcare law says there are 4 units. In 4 units, what you will study, and after study this paper, where you will be. ठीक है, अभी आज at present अभी क्या, now we will start reading this. अभी आपको पता ही नहीं कि healthcare law है क्या, ठीक है, एज पर सिलेबस हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। तो व्हाट आफ्टर स्टडिंग ऑल द टॉपिक्स यू विल बी इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड एंड टू एनालाइज एंड टू डू प्रैक्टिस एज वेल। भाई एलएलबी करने के बाद आप प्रैक्टिस तो शुरू कर दोगे ना, है ना। अच्छा, उसके बाद में क्या है कि अगर आप केस लॉ पढ़ सकते हैं, ये करने के बाद अगर कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो यू विल बी इन ए पोजीशन टू सॉल्व कि भाई ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम अगर आई तो इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। तो दैट यू विल बी इन ए पोजीशन, आपकी वो एबिलिटी इनहांस होगी, आपकी वो थिंकिंग इनहांस होगी, आपका वो विजन इनहांस होगा, जो आप अंडरस्टैंड करोगे, उसके बाद एनालाइज करोगे एंड कैन सॉल्व द। ठीक है, आई जस्ट रिपीट व्हाट यू विल स्टडी। जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया उन लोगों के लिए कि यूनिट 1 में आप पढ़ेंगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर व्हाट आर द हेल्थ इश्यूज, हेल्थ केयर इश्यूज। आप पढ़ेंगे व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट हेल्थ केयर लॉ, नॉट लॉ, अबाउट हेल्थ केयर, एंड देन यू विल स्टडी आपका राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ की बात हो रही है, देखो बेटा, जो आपका पेपर का नाम है वो हेल्थ केयर लॉ है, राइट टू हेल्थ नहीं बता रहे हैं। तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक है राइट टू हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट एंड राइट टू पेशेंट। 2 बात आ जाती है जिसमें राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी एंड राइट टू राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी एंड पेशेंट राइट टू एक्सेस द रिकॉर्ड। इतना फर्स्ट यूनिट में पढ़ोगे। सेकेंड यूनिट में देयर आर सर्टेन एक्ट्स
जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई एक फिजिशियन जो है वो कहाँ रजिस्टर्ड होता है, अंडर किस लॉ में होता है, होम्योपैथिक डॉक्टर है उसकी क्या लायबिलिटी है, और जो डेंटिस्ट है उसकी क्या लायबिलिटी है, अंडर विच लॉ। ये पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे कि ड्रग्स जो मेडिसिन हैं और जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, कुछ कॉस्मेटिक्स ऐसी भी होती हैं जो एज ए मेडिसिन की तरह यूज होती हैं, तो वो कॉस्मेटिक्स को के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसकी सेल के लिए, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मार्केट में वो करने के लिए, जैसे कि बाबा रामदेव ने कहा कि हमने कोरोनिल बना लिया है, इससे कोरोना का इलाज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो उसको रोक दिया गया कि भाई आपने रजिस्टर नहीं कराया था, आपने इसका टेस्ट नहीं किया था, आप मार्केट में नहीं ला सकते हो। तो वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स ऐसी कुछ चीजें होती हैं कि जो प्रोसीजर फॉलो होता है, उनको प्रोसीजर के फॉलो किए बगैर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, आप उसको सेल नहीं कर सकते, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसमें पॉइजनस मतलब सब्सटेंस होता है, तो कितना हो सकता है, किस एक्सटेंट तक हो सकता है, और ये चीजें। इसके अलावा कुछ मेडिसिन जो है ना इंपोर्ट की जाती हैं, तो विच मेडिसिन कैन बी इंपोर्ट, तो ये सारी चीजें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे, जो आपको ऑलरेडी बता दिया, कि जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर कुछ एथिक बनाए गए, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है डॉक्टर्स के लिए कि वो उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को रूटीन लाइफ में टच नहीं होता, लेकिन आप लोग उसके बारे में सुनते हैं कि ऑर्गन्स का एक होता है इलीगल रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा, आई लोग डोनेट कर देते हैं, और किडनी डोनेट कर देते हैं, लीवर डोनेट कर देते हैं। क्या हर कोई डोनेट कर सकता है? कोई उसका क्या कि कुछ उसके पैरामीटर्स हैं डोनेट करने के लिए, तो वो चीज हम लोग उसमें पढ़ेंगे। व्हाट इज दिस? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ रिमूवल्स ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। तो आज की डेट में ऑर्गन्स के अलावा टिश्यूज का भी डोनेशन होता है, तो वो किस तरीके से होता, कौन कर सकता है, वो दैट वी विल स्टडी। एंड एक लास्ट जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब जो विमेंस को लेकर किया है, आई डोंट नो व्हाई इट इज मेंशन इन दिस एक्ट, बट है तो हम लोग को पढ़ना ही होगा उसमें, कि जो प्रीनाटल एंड प्री कंसेप्शन एंड प्रीनाटल डायग्नोस्टिक एक्ट की जो टेक्निक्स हैं डायग्नोज करने के लिए, टू डिटरमाइन दी सेक्स, तो द टेक्निक्स हाउ इट कैन बी यूज्ड, up to what extent can be used, and what are the restrictions to use this, so that we have to study under the, and what obligations of these center where who are using this sonography techniques और ultrasound machines जो लोग यूज कर रहे हैं, उनको ऊपर क्या obligations है, that they have to study, that we have to study under this. And third unit बहुत ही छोटा सा है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा है, that is medical negligence क्या है, and what are its ingredients, and under different law medical negligence क्या कहता है, and then what are the remedies for medical negligence. So this is all about healthcare law. हाँ, अब बताओ आप लोग अपने अपने इश्यूज, बच्चों, just tell me, and if you no one, हाँ बताओ, यस मैम साउंड क्लियर नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा नेटवर्क कंजेशन इशू है। शुरू से नहीं साउंड क्लियर था मैम, कुछ जगह पे एकदम आवाज ही नहीं आ रहा था। एंड अदर्स, बाकी लोग बताओ। ऑडिबल है। ऐसा होता है ना, कभी कभी आपके एंड पर भी कभी नेटवर्क का इश्यू होता है ना, तो चीजें हैं ऐसी। बाकी लोगों को समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। रिगार्डिंग दिस अभी आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि व्हाट यू विल स्टडी अंडर दिस सब्जेक्ट। यस मैम। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और एक चीज आप मान के चलो कि आप लोगों को, चूंकि ये सेमिनार पेपर है, इसमें दो चीजें रहेंगी। एक तो असाइनमेंट हम देंगे, ठीक है,
एक जो आपको सेमिनार पेपर, जैसे मैंने बोला है, यू हैव टू प्रेजेंट ए पेपर। हम एक डे फिक्स कर देंगे कि आज सेमिनार होगा आपका, ठीक है। 2 दिन ये चलेगा क्योंकि वी हैव आई थिंक अराउंड 20-25 बच्चे हैं इसमें, तो 2 दिन सेमिनार करेंगे हम लोग, जिसमें आप अपने हिसाब से आप हमें टॉपिक दोगे और आप अपना पेपर प्रेजेंट करोगे, ठीक है। ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों को एक टाइम बता देंगे कि उस डे तक, जैसे कि आप लोग बाहर सेमिनार पेपर करते हो ना, सेमिनार पेपर देते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर देते हैं, रिसर्च पेपर, यमुना चांद ने लिखा भी है कि वी यूज टू प्रेजेंट आवर रिसर्च पेपर, रिसर्च स्कॉलर, academicians and lawyer present their paper. So you as a student, as a researcher, you will present your paper in seminar. I will just fix a date and you will present a paper and I will issue a certificate, e-certificate. आजकल बहुत ही फैशन में आ गया है e-certificate, तो and it is very easy to make it also. That will be issued to all and चूँकि ये PSDA के पार्ट होगा तो ये आप लोगों ने करना ही होगा, ठीक है। कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं होंगे कि भाई हम नहीं करना है, सबने पेपर प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। सो नाउ आई विल टेक अटेंडेंस, ओके। पहले मैं BLLB के लिए लेती हूँ अटेंडेंस। मैम एक चीज पूछनी है। हाँ बताओ। मैम जो अभी 8 सेमेस्टर हुआ था, जो अभी एग्जाम्स नहीं हो पाए हैं जिस चीज के हम लोग के, अगर मैम मार्क्स इंप्रूव करने के लिए चाहे तो वो पेपर दे सकते हैं, मतलब 10 सेमेस्टर में आके? बेटा वो तो इम्प्रूव करने के लिए तो एग्जाम नहीं होता है, लेकिन अगर कोई फेल होता है तो जरूर पेपर होता है ना। तो और यूनिवर्सिटी का एक सीधा सा रूल है, ये है कि देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूविंग द मार्क्स। यू हैव अपॉर्चुनिटी इफ यू फेल टू गिव अनदर चांस, टू गिव अनदर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो राघव आप अगर फेल होंगे तभी दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते, ठीक है। इज इट क्लियर राघव? कॉलेज, यस मैम, कॉलेज खुलने के चांसेस कब है मैम? जैसे ही यूनिवर्सिटी बोलेगी वैसे ही, ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी ने नहीं बोला है इसलिए नहीं है। तो लेट अस टेक अटेंडेंस फर्स्ट। आज क्या डेट है? टुडे इज 17। अब है प्रेजेंट मैम। ओके। आंचल प्रेजेंट मैम। अंजलि प्रेजेंट मैम। जानवी, केशव, पीयूष, राघव अरोरा, यमुना चांद, ओके, माइक्रोफोन इज नॉट वर्किंग, ओके। आदित्य सिंह प्रेजेंट मैम। ओके। राशि, ऋषभ शर्मा प्रेजेंट मैम। ओके, ऋषभ यू आर प्रेजेंट, ओके गुड। यस सर। करीना नहीं है। प्रियांशी शर्मा प्रेजेंट मैम। हाँ। रितिका, यस मैम। राहुल, यस मैम। ओके। अंकित चौधरी, धारवी तलवार, प्रेजेंट मैम। राघव मिश्रा, प्रेजेंट मैम। हाँ ओके प्रेजेंट। हाँ। अंकित चौधरी प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो? आया था उसका माइक्रोफोन ही चल रहा मैम। ओके चलो, अब मैं BBLLB वालों की ले लेती हूँ अटेंडेंस। मान्या, मैम her mic is not working. ओके। प्रियंका परवाल, ओके। अविद्य नहीं है। प्राक्षी प्रेजेंट है। सुगंध प्रेजेंट है। प्रेजेंट मैम। हाँ। ऋषभ नारायण
एब्सेंट ये तो रहेगा ही। देवांश बंसल नहीं है। सचिन भट्ट, ऋषभ वाशने, आयुष गर्ग, ओनली BBLLB में ओनली 2 बच्चे प्रेजेंट हैं। ओके गुड। Prakshi, I will give you the name of the students and you will make the group, right? मैं आपको मेल करती हूँ, ठीक है बेटा? प्राक्षी, प्राक्षी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ओके गुड। सो एनी डाउट फॉर टुडेज क्लास? नो डाउट। मैं आप लोगों को अगर इफ यू वांट आई विल शेयर माय वीडियो ऑन दिस पॉइंट इफ यू वांट। आप चैट बॉक्स में लिखो इफ यू वांट और नॉट। यस मैम, यस मैम, यस मैम। ओके ठीक है, मैं वीडियो शेयर करूंगी। सुनो बेटा, एक ना हम क्या करेंगे, जो मैंने लास्ट टाइम किया था, एक जो व्हाट इज से दिस गूगल क्लासरूम होती है, ठीक है? तो गूगल क्लासरूम में आई विल क्रिएट ए गूगल क्लासरूम, आई विल सेंड यू इनवाइट। तो आप लोगों ने क्या करना है, उस गूगल क्लासरूम को आपने ज्वाइन करना होगा, ठीक है? उस गूगल क्लासरूम में आई विल अपलोड माय नोट्स एंड वीडियो, ठीक है? तो एक ये मैं इसमें क्या होता है, एक ही जगह सारे नोट्स एंड ऑल होते हैं। इसमें अगर हम आपको कोई एग्जाम भी कराना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल क्यूज वगैरह करवाना चाहेंगे, और दैट इज वेरी इजी ऑन गूगल क्लासरूम। आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस है गूगल क्लासरूम में पढ़ाई का? एनी आइडिया क्या? यस मैम। हाँ यस यस, प्रियंका को तो है। और किसने बोला? अर्चना। मैम टीम मैथ्स में तो ले रखा है। किसने? अंकित ने? यस मैम। अच्छा ठीक है, चलो गूगल क्लासरूम में हम लोग वहाँ पे उसको हम लोग यूज करेंगे एज ए नोट्स के लिए और एग्जाम के लिए, शॉर्ट काइंड ऑफ शॉर्ट एग्जामिनेशन, छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए और क्यूज करने के लिए। बाकी डिलीवरी के लिए हम लोग ये जूम को यूज करेंगे, ठीक है बेटा? चलो ओके मैम। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो। हाँ बताओ मैम मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई थी। अंकित मार्क कर ली मैंने आपकी, ठीक है? ओके चलो ओके ओके बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम।